Hi friends, welcome to EduTap. I hope your preparation for RBI Grade B is going great guns. Now earlier when we made a strategy for RBI Grade B when the notification came, one point that I told you categorically is that you have to do finance and management before phase 1 because otherwise covering everything after phase 1 would become difficult for you. Now many of you are following that strategy, you're trying to cover finance and management, but at times covering the whole finance can be difficult. So a lot of people have doubt in their mind that if they want to really cover up finance in short time quickly, what is the cheat code, how can they manage it in a short time. So in this video I'm going to discuss some of the important chapters for फाइनेंस फॉर आरबीआई ग्रेड बी जो आप अभी कर सकते हैं ताकि बाद में अगर आप बाकी चैप्टर्स नहीं भी करेंगे या कम प्रायोरिटी से करेंगे इट कैन बिकम लिटिल इजियर फॉर यू. So before I start with this, I would request you to subscribe to our YouTube channel as always and join our Telegram channel in case you want some free content, the link for which is given in the description of this video. अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज समझनी क्या है आपको कि आप फाइनेंस के सिलेबस को देखिए जो आपका सिलेबस है नोटिफिकेशन में. सी फर्स्ट ऑफ ऑल, do not get goosebumps by just hearing the word finance. This is not core finance. This is not actual finance which MBAs, chartered accountants, or CFAs study. I would say this is public finance, general finance. There are a lot of chapters here. For example, global financial markets and international banking, financial inclusion, alternate sources of finance, private and social cost benefit, public-private partnership, fintech, corporate governance, role of e-governance. This is not finance at all. This is not at all finance. ठीक है, तो ये कोर फाइनेंस है ही नहीं. दिस इज समथिंग वेरी जेनरिक फाइनेंस. थोड़े बहुत चैप्टर्स हैं लाइक रिस्क मैनेजमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स विच आर क्लोज टू एक्चुअल फाइनेंस, बट वो भी बहुत मुश्किल नहीं है. तो आपको घबराना नहीं है, आप कर सकते हैं और आप करेंगे, मुझे पता है. बस एक दृढ़ दृढ़ निश्चय करना है कि आई विल डू इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट. अब फाइनेंस को अगर आप समझें तो फाइनेंस आपका एक ओवरऑल एफएम पेपर में फाइनेंस का कुछ पोर्शन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी. In objective paper, finance is worth 25 to 30 marks. Rest is management. In subjective paper also it's 20 to 25 marks because दो तीन क्वेश्चन मैनेजमेंट के होते हैं. So overall weightage half रहता है फाइनेंस का in the FM paper. Now I am going to tell you the important chapters in finance from objective and subjective perspective both because both the areas require different orientation. If I talk about objective part, these are the important chapters. अगर आप ये कर ले, I can bet if you analyze the past year 5 years papers, 80% of the questions would have come from this chapter. Primary and secondary markets, risk management, inflation, derivatives, functions of RBI, monetary and fiscal policy, and who regulates what. Who regulates what means every year there is a question that say who regulates capital market, who regulates NBFCs, who regulate cooperative banks, who regulate rural cooperative banks. ऐसा एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है. उसका आंसर आरबीआई, सिडबी, सेबी, नबार्ड इनमें से कोई ऑप्शन होता है, बट दैट यू कैन आंसर ओनली इफ यू आर क्लियर अबाउट हु रेगुलेट्स व्हाट. अगर मैं इन चैप्टर्स को सिलेबस से मैप करूं तो आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स जो चैप्टर है बेसिकली ये वाला है जिसमें आपको बेसिकली फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी की प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स के बारे में पढ़ना है. Next is your risk management, which is this chapter in your syllabus. Inflation is basically this chapter in your syllabus, chapter number 8. ठीक है, ये आपके ऑरेंज लाइंस में हाईलाइट भी हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं. डेरिवेटिव्स इज दिस. इन बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, डोंट जस्ट डू futures, forwards or swaps, also do options. This is a common mistake which people do. Then next is functions of RBI, which is this one. Functions of RBI and monetary policy also is part of this chapter as per syllabus. मैंने अलग डाला है यहाँ पे monetary and fiscal policy. तो monetary policy तो करना ही है. Fiscal policy is basically covered in your union budget syllabus. ठीक है, और उसके बाद हु रेगुलेट्स व्हाट इज बेसिकली आप ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखेंगे कि डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, क्या रेगुलेट करते हैं, या रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जो आपका फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट है इसमें हु रेगुलेट्स व्हाट आता है. तो ये चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए. बाकी चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी चैप्टर्स मेनली सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन से हैं, एंड इफ एट ऑल देयर वुड बी क्वेश्चंस फ्रॉम अदर चैप्टर्स इट वुड बी मेनली सब्जेक्टिव. तो मैं बाद में आपको बताऊंगा देयर इज ओवरलैप ऑल्सो. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप सिंपली देखें तो ये 7-8 चैप्टर्स ही हैं जो आपको पढ़ने हैं. और अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं, पहले मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा था, अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं तो जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-8, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, ये वाला चैप्टर हो गया आपका. देन ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, रोल ऑफ ई गवर्नेंस की बात करें, और फिनटेक की बात करें, जो आपका लास्ट में है यहाँ पे, फिनटेक की बात करें, ये सारे चैप्टर्स में से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस नहीं रहते हैं। ये ज़्यादा चैप्टर्स दे आर मेनली फ्रॉम सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन। तो जब भी आप इनको पढ़ें, सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन से पढ़ें, एंड इफ एट ऑल देयर वुड बी सम क्वेश्चन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट, दैट कैन बी हैंडल्ड इजली, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो आप समझ के कर ही लेंगे ना, क्योंकि उसमें से बहुत घुस घुस के तो वो नहीं पूछेंगे। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर इज ऑलवेज एन ओवरलैप बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। मैंने यहाँ पे आपको बताया ये चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। कैन देयर बी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम दिस? डेफिनेटली, इनफैक्ट इट वुड बी। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए भी। देन फंक्शंस ऑफ आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए भी। ठीक है, यूनियन बजट बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए भी। तो जो चैप्टर्स मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए बताए हैं, सब्जेक्टिव के लिए तो वो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन जो चैप्टर्स मैंने सब्जेक्टिव के लिए बताए हैं वो ज्यादा सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। उनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, और अगर आएंगे भी तो वो बहुत बेसिक आएंगे। वंस यू हैव प्रिपेयर्ड दीज चैप्टर्स फ्रॉम सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन, यू वुड बी इवन एबल टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन द एग्जाम, राइट? सो इस तरीके से अगर आप अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन के लिए और सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन के लिए, आई थिंक यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर inroads into the completion of your syllabus। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, लगे रहिएगा, कहीं ना कहीं अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। Thank you guys, have a nice day। I hope this video is useful and it will give you a boost towards completion of finance, right, in the next 6-7 days, because after that I know you will have to focus on phase 1। Bye bye, have a nice day।